Everyone, is Dr. Vikas once again. It's been a while, and today I am coming here with the detailed analysis of the Supreme Court order today, which stayed all the three farm acts which were passed by the government some time back. So, as you can see here, this is as per the writ petition filed in 2020 by Rakesh Vaishnav and others versus the Union of India, which is the government of India. And अगर आप इसमें देखेंगे, there are so many people who have joined the case later. So what the Supreme Court has done is that they've taken all the petitions which are concerning the farm laws and they put it all together under one case so that they don't have to have multiple hearings and multiple appearances. The quorum is made up of the Chief Justice of India, Mr. Bobde, and Honorable Mr. Justice A.S. Bopanna and Honorable Mr. Justice Mr. Ramasubramanian. You can see these are the list of lawyers who have petitioned. There's a great long list of lawyers who have petitioned, and this is for respondents. The first one is Mr. K.K. Venugopal, who's the Attorney General of India, and all the other people who are part of the respondents. Here, there's a long list. As we go down, so this is now the main part of the order today. So, first of all, the Supreme Court is saying that there are three acts which have been passed: the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020, Essential Commodities Amendment Act 2020, and the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Act 2020. In this regard, I had made a video some time back where I had explained the act in detail, clause by clause. It's a 1 hour long video, almost a 1 hour long video. I would urge you to look at that if you haven't seen that video. And I've also put timestamps which explains every section one by one, so you can go to a particular section which is of interest. Coming to this order today, the Supreme Court has divided all the petitions in three categories here. This is one category of petitions challenges the constitutional validity of the farm laws. एक कैटेगरी ऑफ पिटिशंस वो हैं जो कह रही हैं कि ये फार्म लॉज ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ ही नहीं करता है इनको. तो बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक शेड्यूल 7 है. शेड्यूल 7 में हम दिया हुआ है कि किस चीज़ के ऊपर स्टेट लॉज बना सकता है, किस चीज़ के ऊपर सेंट्रल लॉ बना सकता है, जिसे हम स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट बोलते हैं, और किस चीज़ के ऊपर दोनों लॉ बना सकते हैं, जिसे हम कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं. तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो स्टेट सब्जेक्ट है, तो इस पर सेंटर ने कैसे लॉ बना लिया. बट एक्चुअली हुआ ये था कि 1954 में जब जमींदारी सिस्टम हटाया गया था, जब एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स बनाए जा रहे थे, तो नेहरू जी रियलाइज दैट द लॉट ऑफ थिंग्स दैट ही कुड नॉट डू बिकॉज सेंटर डिड नॉट हैव द पावर टू मेक एक्ट्स ऑन फार्म एंड फार्मिंग एक्सेट्रा एग्रीकल्चर के ऊपर. सो उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया था तब 1954 में, और वो डाल दिया था उसमें कि सेंटर भी इसके ऊपर लॉ बना सकता है. तो दिस पार्ट एज फार एज आई एम कंसर्न is a moot point. It will not be considered by the Supreme Court. The second category of petitions are those which support the farm laws on the grounds that they are constitutionally valid. तो दूसरे petitions वो जो सपोर्ट कर रहे हैं इस लॉज को, वो कह रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छी लॉज हैं फार्मर्स के लिए, हम इनको सपोर्ट करते हैं. द थर्ड कैटेगरी ऑफ petitions इसी है आर दोज फाइल्ड बाय इंडिविजुअल्स हु आर रेजिडेंट्स ऑफ एनसीटी, जो दिल्ली में, दिल्ली के आसपास नेबरिंग एरियाज में रहते हैं. They are claiming that the agitation by farmers is in the peripheries of Delhi and the consequent blockade of roads etc. leading to Delhi infringement. तो वो कह रहे हैं कि ये जो रोड्स ब्लॉक वगैरह हो रही हैं, लोग आने जाने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, ये उनके फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता है, तो इसको नहीं अलाउ करना चाहिए. तो तीन कैटेगरी ऑफ पिटिशंस हो गई. तो देन सुप्रीम कोर्ट से दैट थ्रू दो सेवरल राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस हैव टेकन प्लेस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द फार्मर बॉडीज, नो सोल्यूशन सीम्स टू बी इन साइट. मतलब जो कि बहुत सारी राउंड्स हो चुके हैं नेगोशिएशन के, लेकिन कोई भी सोल्यूशन नहीं नज़र में आ रहा है. और ग्राउंड की सिचुएशन ये है दैट सीनियर सिटीजन विमेन एंड चिल्ड्रन आर ऑल्सो एट द साइट ऑफ प्रोटेस्ट. पता है कि सीनियर सिटीजन विमेन और चिल्ड्रन वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे. तो देन ही सेइंग दैट सुप्रीम कोर्ट सेइंग दैट एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू सीरियस हेल्थ हैजर्ड्स बिकॉज ठंड बहुत है और ऊपर से पैंडेमिक फैला हुआ है. सो दिस इज नॉट समथिंग विच इज़ वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन. दैट अ फ्यू डेथ्स हैव टेकन प्लेस, कुछ डेथ्स भी हुई है. बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नेचुरल डेथ्स ही, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वहाँ पे डेथ हुई नहीं है, डेथ कहीं और हुई है, उन लोगों को वहाँ पे लाके दिखाया गया कि यहाँ डेथ होगी. वी डोंट नो व्हाट द ट्रूथ इज, बट द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइजेस दैट डेथ्स हैव टेकन प्लेस. लॉर्डबली द सुप्रीम कोर्ट इज प्रशंसा कर रहे हैं इस बात की दैट द फार्मर्स हैव सो फार कैरिड ऑन द एजिटेशन पीसफुली एंड विदाउट एनी अनटोवर्ड इंसिडेंट, कि कोई भी वहाँ पे वायलेंस अनटोवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इसी बारे में बात कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट टेक्स कॉग्निजेंस ऑन द फैक्ट
that a specific amendment is made in an intervention application filed by the Indian Kisan Union, IA number so and so, that organization named Sikhs for Justice, ये एक खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है which is banned by for anti-secessionist movement is financing the agitation. This amendment is supported by the learned attorney general also. तो ये जो इंडियन किसान यूनियन जो बोल रही है कि यहाँ पे फंडिंग आ रही है सिक्स फॉर जस्टिस से, ये हमारे अटॉर्नी जनरल मिस्टर के वेणुगोपाल भी इसको सपोर्ट करते हैं इस क्लेम को. देन अ फ्यू फार्मर्स बॉडीज आर नाउ प्रोटेस्टिंग हैव एंगेज्ड अ टीम ऑफ लॉयर्स कंप्राइजिंग ऑफ श्री वगैरह वगैरह लॉयर्स का नाम दिए हुए हैं, एंड दे आर सेइंग दैट 26 जनवरी को वो एक ट्रैक्टर रैली निकालेंगे डिसरप्टिंग द रिपब्लिक डे परेड एंड सेलिब्रेशंस. द सेम वाज स्टाउटली डिनाइड बाय श्री दुष्यंत दवे, learned senior counsel appearing for a few farmers bodies. जो एडवोकेट दुष्यंत दवे वो इसको डिनाई करते हैं कि ऐसा कोई प्लान नहीं है, बट ये सुनने में आया है, ये कहा गया है कि उनका एक प्लान है फार्मर्स का कि वहाँ पे 26 जनवरी को एक ट्रैक्टर रैली निकाल के वो 26 जनवरी की जो हमारी परेड सेलिब्रेशन होती है उसको डिस्टर्ब करने का कुछ प्लान सुनने में आया है. Be that as it may, the negotiations between the farmers' bodies and the government has not yielded any result so far. Therefore, we are of the view that the constitution of committee of experts in the field of agriculture to negotiate between the farmers' bodies and the government of India may create a congenial atmosphere and improve the trust and confidence of the farmers. वो कह रहे हैं कि बिकॉज वो नेगोशिएट नहीं कर पाए हैं, सो सुप्रीम कोर्ट सजेस्ट कर रहा है कि उनको दोनों को नेगोशिएट करने के लिए हेल्प करने के लिए एक कमेटी बनाई जाए जिसमें एक्सपर्ट्स हों फार्मिंग लॉज को लेकर, फार्मर्स को लेकर, और वो उनको नेगोशिएट करने में हेल्प करें. वी आर ऑल्सो ऑफ द व्यू दैट अ स्टे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल द 3 फार्म लॉज फॉर द प्रेजेंट में assuage the hurt feelings of the farmers and encourage them to come to a negotiating table with confidence and good faith. सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अगर उनको लगता है कि अगर इन लॉज को अभी फिलहाल के लिए कुछ समय के लिए स्टे कर दिया जाए, रोक दिया जाए, ताकि जो फार्मर्स हर्ट हुए हैं, जो एसोसिएशन हर्ट हुई है फार्मर्स की, उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए और वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आए. अभी फिलहाल आपको पता है कि फार्मर्स नेगोशिएट नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हम कुछ भी बात नहीं करेंगे, हमें सिर्फ चाहिए कि फार्म लॉज रिपील हो जाए, हटा ली जाए, वापस ले ली जाए, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि उनको किस चीज़ से प्रॉब्लम है फार्म लॉ की. व्हेन वी पुट अक्रॉस द अबव सजेशंस, द लर्नड अटॉर्नी जनरल इवन व्हाइल एग्रीइंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी अपोजेस वेहेमेंटली. वो कह रहे हैं कि जो अटॉर्नी जनरल वो जोर जोर से कह रहे हैं कि किसी तरह का इंटरिम स्टे देना ठीक नहीं है. ड्राइंग अटेंशन टू द लॉ लेड डाउन बाय द कोर्ट इन, वो एग्जाम्पल देते हैं कि फलाना केसेस में लॉ ले डाउन करा गया था कि दैट द सुप्रीम कोर्ट कैनॉट स्टे अ लॉ विच हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट विदाउट मच कॉज. He argued that none of the petitioners who had attacked the farm laws have pointed out any single provision which is detrimental to the farmers, and that the laws enacted by the parliament cannot be stayed by this court, especially when there is a presumption in favor of constitution to the. So what he's saying is that none of the farmers bodies which are protesting have pointed out any single provision. मतलब उन्होंने किसी भी लॉ के अंदर कोई एक भी ऐसी लाइन नहीं बताई है जो कि फार्मर्स के अगेंस्ट है. वो सिर्फ इतना बोलें कि लॉज खराब है, लॉ वापस लीजिए, लॉ वापस लीजिए, ये नहीं बता रहे कि लॉ में क्या खराब है, बिकॉज वो ऐसा नहीं बता पा रहे हैं. एंड वी प्रिज्यूम दैट देयर इज नो अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी इन द लॉ, तो फिर वो उसको आप स्टे कैसे कर सकते हैं. सो द सुप्रीम कोर्ट से दो वी अप्रिशिएट द अफोरसेड सबमिशन ऑफ द लर्नड अटॉर्नी जनरल, दिस कोर्ट कैन नॉट बी सेड टू बी कंप्लीटली पावरलेस टू ग्रांट स्टे ऑफ एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन अगेंस्ट द स्टैट्यूटरी एनैक्टमेंट. तो कह रहे हैं कि जबकि हम अटॉर्नी जनरल की बात मानते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इज नॉट पावरलेस टू ग्रांट स्टे. इवन वेरी रिसेंटली दिस कोर्ट पास एन इंटरिम ऑर्डर, तो फिर एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि फलाना केस में भी उन्होंने ऐसे ऑर्डर पास करे थे. सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, सम ऑफ द फार्मर्स बॉडीज हु आर अपोजिंग द फार्म लॉज एंड हु आर रिप्रेजेंटेड बिफोर अस थ्रू काउंसिल हैव एग्री टू गो बिफोर अ कमेटी. सम ऑफ द फार्मर्स बॉडीज वो मान गए हैं कि वो कमेटी के सामने जाने के लिए तैयार है. मिस्टर पी विल्सन, लर्नड सीनियर काउंसिल रिप्रेजेंटिंग वन सेक्शन ऑफ द फार्मर्स एटसेट्रा, सर ने कुछ एग्जाम्पल दिए कि ये जो यूनियंस हैं ये एग्री कर गई है कि हम कमेटी के सामने बैठने के लिए तैयार हैं. ही इवन वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग दैट elders, women and children will be dissuaded from being there at the site of protest. जो एज में ज़्यादा लोग हैं, औरतें हैं और बच्चे हैं, उनको वहाँ पे एजिटेशन की साइट पे होना अलाउड नहीं होना चाहिए. मिस्टर अजित चौधरी, लर्नड काउंसिल ऑफ किसान महापंचायत, सबमिटेड दैट द फार्मर्स फ्रॉम राजस्थान हु आर प्रोटेस्टिंग एट द बॉर्डर ऑफ राजस्थान आर विलिंग टू अपीयर बिफोर द कमेटी. तो बोला कि राजस्थान के किसान है, जो राजस्थान महापंचायत है, वो भी एग्री कर रहे हैं कमेटी के सामने जाने के लिए. मिस्टर वी चिदम्बरेश, लर्नड सीनियर काउंसिल अपीयरिंग फॉर भारतीय किसान संघ, सबमिटेड द यूनियन which he represents is not aggrieved by the farm laws. जो ये वाली यूनियन है वो कह रहे हैं कि उनको कोई फार्म लॉ से कोई प्रॉब्लम नहीं है. मिस्टर श्रीधर पुत्तराजू वो भी कह रहे हैं दैट द क्लाइंट रिप्रेजेंटिंग 15 फार्मर्स यूनियंस अक्रॉस 15 स्टेट्स दैट दे विल बी बैडली अफेक्टेड इफ देयर इज अ स्टे इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फार्म लॉज. वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं फार्म लॉज को. ये जो मिस्टर श्रीधर पुत्तराजू के साथ जो 15 एसोसिएशन है 15 स्टेट से, वो कह रहे हैं कि अगर स्टे लगा दिया गया तो ये फार्मर्स के लिए अच्छा नहीं होगा. दिस इज फॉर द रीजन दैट द फार्मर्स whom he represents cultivate fruits and vegetables, and that about 21 million tons of the fruits and vegetables will rot if nothing is done at this stage.
तो कह रहे हैं कि जो उनके फार्मर्स जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो 2 करोड़ टन 21 मिलियन टन 2.1 करोड़ टन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रॉट हो जाएंगे, वो सड़ जाएंगे अगर इस टाइम पे उस पर स्टे लगाया जाता है इन लॉज के ऊपर। इन सो फार एज द अप्रीहेंशन रिगार्डिंग MSP, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जहाँ तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात है बीइंग डन अवे विद, इट इज़ सबमिटेड अक्रॉस द बार दैट द सेम मे नॉट बी डिसमेंटल्ड। तो बोला है उसकी बताया गया है बार को कि ऐसा कुछ डिसमेंटल नहीं होगा, MSP नहीं हटाया जाएगा। द लर्नड सॉलिसिटर जनरल ऑल्सो कन्फर्म दैट देर आर इनहेरेंट सेफगार्ड्स इनबिल्ट इन द फार्म लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लैंड ऑफ द फार्मर्स एंड दैट इट विल बी इंश्योर दैट नो फार्मर विल लूज हिज लैंड। वो कह रहे हैं कि सॉलिसिटर जनरल ने ये भी समझाया है कोर्ट को कि जो फार्म लॉज बने हैं उसमें इनबिल्ट प्रोविजंस हैं, उसके अंदर ऐसी चीज़ें डाली गई हैं कि जो फार्मर का किसान की जो ज़मीन है उसको प्रोटेक्शन 100% मिल रही है और किसी तरह से फार्मर की ज़मीन को कोई भी स्पॉन्सर या कोई भी उसका खरीदार हथिया नहीं सकता है। हैविंग हर्ड डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स वी डीम इट फिट टू पास द फॉलोइंग इंटरिम ऑर्डर। तो वो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि सबकी बातें सुनने के बाद हम इस ऑर्डर को पास कर रहे हैं, इंटरिम ऑर्डर। इंटरिम ऑर्डर मतलब ये फाइनल ऑर्डर नहीं है, ये इंटरिम ऑर्डर है, मतलब कि ये फिलहाल के लिए ऑर्डर है, विद द होप एंड एक्सपेक्टेशन दैट बोथ पार्टीज विल टेक दिस इन द राइट स्पिरिट एंड अटेम्प्ट टू अराइव एट अ फेयर, इक्विटेबल एंड जस्ट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। तो कह रहे हैं कि हम ये सोच के ये पास कर रहे हैं ऑर्डर कि हमें लग रहा है कि दोनों पार्टीज मतलब कि फार्मर्स और एक सरकार मिलकर एक इक्विटेबल मतलब ऐसा एक सोल्यूशन निकालेंगी जो कि सबको एग्रीएबल हो। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 3 फार्म लॉज जो मैंने ऊपर फार्म लॉज बताई थी शैल स्टैंड स्टेड अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। तो उन्होंने इन लॉज को स्टे कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अंटिल फर्दर ऑर्डर्स, मतलब कोई टाइम या डेट नहीं दी है, यानी कि जब तक इस स्टे को रिवोक नहीं करेंगे तब तक वो स्टे है। एज पर अ रीसेंट ऑर्डर ऑफ 2016 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, any stay by the courts of India will only be valid for a period of 6 months. 6 months के बाद कोई भी कोर्ट अगर कोई भी स्टे ऑर्डर उसको एक्सटेंड करता है तो उसको स्पीकिंग ऑर्डर देना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि मान लीजिए कोई स्टे ऑर्डर ले लिया आपने, जब कोर्ट के पास जाते थे स्टे ऑर्डर एक्सटेंड कर दीजिए तो कोर्ट को होता था स्टे ऑर्डर एक्सटेंडेड, दैट्स इट। क्यों किया, क्या रीज़न था वो नहीं देता था। लेकिन अब कोई भी स्टे ऑर्डर एक तो सिर्फ 6 महीने के लिए होगा और 6 महीने के बाद जब एक्सटेंड करेंगे उसको तो कोर्ट को रीज़न देना पड़ेगा कि हम क्यों एक्सटेंड करें, व्हाट इज द रीज़न वाई एम एक्सटेंडिंग द स्टे ऑर्डर। तो हमें मान के चलते हैं कि ये स्टे ऑर्डर भी 6 महीने के लिए वैलिड रहेगा इफ द सुप्रीम कोर्ट फॉलोज इट्स ओन अर्लियर जजमेंट। एज अ कॉन्सिक्वेंस मतलब इस स्टे की वजह से द मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम इन एग्जिस्टेंट बिफोर द एनैक्टमेंट ऑफ द फार्म लॉ शैल बी मेंटेन अंटिल फर्दर ऑर्डर। तो कह रहे जो MSP का जो रिजीम था पहले वो अभी लगा रहेगा। इन एडिशन द फार्मर्स लैंड होल्डिंग शैल बी प्रोटेक्टेड। ये मुझे पता नहीं क्यों लिखने की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने लिख दिया है फार्मर्स को अश्योरेंस दिलाने के लिए कि फार्मर्स की लैंड होल्डिंग शैल बी प्रोटेक्टेड, जो कि ऑलरेडी लॉ में प्रोटेक्ट कर गए हैं। द नो फार्मर शैल बी डिस्पोजेस्ड और डिप्राइव्ड ऑफ हिज टाइटल। किसी भी फार्मर का जो ज़मीन है वो ना उससे छीनी जाएगी ना उसका टाइटल उससे छीना जाएगा अंडर द फार्म लॉज, जो कि फार्म लॉज में उसको प्रोटेक्शन दी गई। द कमेटी कंप्राइजिंग ऑफ श्री भूपेंद्र सिंह मान, नेशनल प्रेसिडेंट, भारतीय किसान यूनियन, तो उन्होंने बताया कि इन सबको मिला के ये कमेटी बना रहे हैं, सब नाम दिए हैं। इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पज ऑफ लिसनिंग टू द ग्रीवेंसेज ऑफ द फार्मर्स रिलेटेड टू द farm laws and the views of the government and to make recommendations. This committee shall be provided a place as well as secretarial assistance at Delhi by the government. All expense of the committee to hold sittings at Delhi or anywhere else shall be borne by the central government. So the representatives of all the farmers' bodies, whether they are holding a protest or not, and whether they support or oppose the law, shall participate in the deliberations of the committee and put forth their viewpoint. वो कह रहे हैं कि जो भी फार्म बॉडीज है, चाहे वो सपोर्ट करती हूँ नई लॉज को चाहे नहीं करती हूँ, तो वो सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। द कमेटी शैल अपॉन हेयरिंग द गवर्नमेंट एज वेल एज द रिप्रेजेंटेटिव्स, वो कह रहे हैं जो कमेटी वो गवर्नमेंट की बात भी सुनेगी और वो फार्मर्स की बात भी सुनेगी एंड सबमिट अ रिपोर्ट बिफोर दिस कोर्ट कंटेनिंग इट्स रिकमेंडेशन। और इन सब की बात सुनने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट को अपना सुझाव, अपने रिकमेंडेशन प्रेजेंट करेगी कमेटी, जो कि नॉर्मली कमेटीज करती हैं। दे शैल बी डन विद इन 2 months। सो बेसिकली ये जो कमेटी को 2 महीने का समय दिया गया है फ्रॉम द डेट ऑफ दिस फर्स्ट सिटिंग। द फर्स्ट सिटिंग शैल बी हेल्ड विद इन 10 days फ्रॉम टुडे। तो वो कह रहे हैं कि जो इसके बाद जो सिटिंग होगी, फर्स्ट सिटिंग जो कमेटी की होगी विच विल बी 10 days फ्रॉम टुडे। तो उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया हुआ है। तो बेसिकली जो फर्स्ट सिटिंग होगी कमेटी की वो 10 दिन बाद होगी और 10 दिन के बाद से स्टार्ट होकर 2 महीने तक उनको अपनी फाइंडिंग देनी है। तो बेसिकली 2 महीने 10 दिन के अंदर वो फाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट को मिल जानी चाहिए, फिलहाल जो उन्होंने ऑर्डर आज पास किया है। ऊपर से वो कहते हैं वाइल वी मे नॉट स्टाइफल अ पीसफुल प्रोटेस्ट, वी थिंक that this extraordinary order of stay of implementation of the farm laws will be perceived as an achievement of purpose of such protest
फॉर द प्रेजेंट आई विल एनकरेज द फार्मर्स बॉडीज टू कन्विंस द मेंबर्स टू गो बैक। तो कह रहे हैं कि जो हम पीसफुल प्रोटेस्ट को हम कभी भी स्टाइफल नहीं करना चाहते, लेकिन हमें मान के चल रहे हैं कि जो हमने स्टे लगा दिया है उससे फार्मर्स बॉडी खुश होंगी, अपनी विक्ट्री मानेंगी उसको और अपने काम पे वापस जाएंगी। They'll go back to their farm, then they start working and protect their own lives and health। तो अपनी ज़िंदगी को, अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करेंगी वो, लिस्ट द मैटर आफ्टर 8 वीक्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको 8 वीक्स के बाद दोबारा लिस्ट किया इस मैटर को। 8 वीक्स यानी कि 2 महीने लगा लीजिए। तो ये है आज का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था फार्म लॉस के बारे में। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। कोई आपके क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ लीजिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। मेरे जो दूसरे वीडियोस हैं फार्म लॉस के ऊपर, वो मैंने नीचे लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, वो देख लीजिए। एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो टुडे। यू हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।